Good morning, dear students. We are doing chapter number 2, Accounting for Partnership Firms Fundamentals. And today we will discuss illustration number 60 from DK Goel. Open page number 2.75 in new books. Okay. Illustration number 60. I'm reading statement. Listen carefully, students. On March 31st, 2018, the capital accounts of Alvin, Monu, and Ahmed, after making adjustments for profits, drawings, etc., whereas Alvin 80,000, Monu 60,000, and Ahmed 40,000. So these are the closing capital because these are giving after making all adjustments. तो after adjustments के बाद जो capital होगी वो आपकी closing capital होती है. Okay, so this is the closing capital of all partners. Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. ठीक है, ये दोनों चीजें इन्होंने नहीं यहाँ प्रोवाइड करवाई हैं. So the partners were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum, and the drawings during the year were Alvin 20,000, Monu 15,000, and Ahmed 9,000. Drawings are also given of all partners. Interest on drawings chargeable to the partners was Alvin 500, Monu 360, Ahmed 200. Interest on drawings given है आपके क्वेश्चन में. And the net profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 1,20,000. Net profit also given. And the profit sharing ratio of the partners was ratio 3, ratio 2, ratio 1. Okay, this is the profit sharing ratio. Record the necessary adjustments entry for the rectifying the above errors of omission show your working. So students, actually question is same, but only one thing is different in this question. वो क्या है? क्योंकि in this question closing capitals are given, but जो interest on capital जो आप provide करवाते हैं वो किसके ऊपर होना चाहिए? It should be on opening capital. वो आपकी opening capital पे होना चाहिए ना. तो opening capital is missing in your question. So first of all you have to calculate opening capital. आपको यहाँ पर opening capital निकालनी है. First of all आपका यहाँ पर ये working है. After then you will calculate interest on capital of the opening capital. आप opening capital क्योंकि capitals इसमें fluctuate है, fixed नहीं है. अगर यह capital fixed होती तो ये जो capitals हैं 80,000, 60,000, 40,000 तो यही same capital आप लेके चलते. But in this question यहाँ कहीं पर भी mention नहीं है कि capitals fixed हैं. So that's why capitals are fluctuating. So first of all we will calculate opening capital. Okay, तो यहाँ पर आप opening capital करेंगे, calculate opening capital calculate करने के लिए reverse हो जाएगा सब points. Reverse means जब आपके पास opening capital given होती है, opening capital में आप लोग क्या ऐड करते हो? Profit माइनस करते हो drawings और आपके पास आ जाती है closing capital. This is the formula to calculate closing capital. Okay, but in this question this is the reverse. Closing capital is given. अब आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल. इफ क्लोजिंग कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट, तो ये सब रिवर्स हो जाएगा. जो प्रॉफिट आपने ऐड किया है दैट प्रॉफिट यू विल नाउ डिडक्ट. ओके, एंड जो ड्राइंग्स आपने यहाँ से डिडक्ट की थी नाउ यू विल ऐड बैक. ड्राइंग्स आपको वापस ऐड कर लेनी है और प्रॉफिट आपको माइनस कर देना है. इसके बाद जो आपके पास आएगी दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल. फॉर्मूला नोट कर लो. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है. क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स ओके इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल. और इफ ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग अगर सपोज चाहिए हो तो देन ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स. ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज आप नोट कर लो. अभी हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल. तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला वी विल पुट. ओके, वी विल यूज this question. 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर्स के लिए सेम. Alvin, Monu, and third partner is Ahmed. Illustration number 60. Calculation
of opening capital. ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कैपिटल that is given in your question 80,000, 60 and 40. 80, 60, 40. Okay, 80,000, 60,000 and 40,000. Now we will deduct profit. Profit is given 1,20,000. उनकी रेशो में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इसकी रेशो निकाल लो. अकॉर्डिंग टू रेशो calculate the profit of all partners. 1,20,000 in 3 ratio, 2 ratio 1. 3/6, 2/6 and 1/6. ये आएगा 60,000, 40,000, 20,000. ठीक है. Now 80 minus 60, 20. 60 minus 40, 20. 40 minus 20. Okay. Now we will add drawings. Drawings given है आपके क्वेश्चन में. Alvin 20,000, Monu 15,000 and Ahmed 9,000. Total 40,000, 35,000, 29,000. These are the opening capital. ओके, ये हमने निकाल ली ओपनिंग कैपिटल. अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ओमिटेड है इन दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दीज कैपिटल्स. ओके, कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. एट द रेट 5% वाले ना. एलवी 40,000 into 5/100. Monu 35,000 into 5/100. Ahmed 29,000 into 5/100. ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया. ए का आ जाएगा 2,000 एल्विन और मोनू 1750 and Ahmed 1450. Okay. Now same table showing adjustments. These I think वो आप अपने आप कर लोगे अब, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सेम कर लिए. So interest on capital first of all and interest on drawings भी omitted है. So interest on drawings जो है वो डेबिट होती है और interest on capital क्रेडिट. ठीक है. So interest on capital first of all आप इसमें मेंशन करना, then interest on drawings आप उसमें से डिडक्ट कर देना. After then जो टोटल है that total divide in partners profit sharing ratio. Then you can compare and you can pass journal adjustment journal entry. Okay, adjusted journal entry. ये हो जाएगा अब आपका क्वेश्चन. बट जो स्टार्टिंग का पोर्शन में जो चेंजेस थे वो मैंने आपको यहाँ क्लियर किए हैं. आफ्टर देन इलस्ट्रेशन नंबर 61. क्वेश्चन इज सेम, यही क्वेश्चन है. omission of interest on capital when fixed capitals are given. If capitals are fixed, स्टूडेंट्स अगर कैपिटल फिक्स्ड होंगी, अगर क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्म में 80, 60 एंड 40,000 गिवन है, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो देन हमें ये सब प्रोसेस करना ही नहीं है, बिकॉज कैपिटल्स तो फिक्स हैं. आपकी ओपनिंग भी यही रहेगी और क्लोजिंग भी रहेगी. चेंजेस तो करंट में आए होंगे ना. सो देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दीज कैपिटल्स. तो हमने फिर 80,000, 60,000 और 40,000 पे ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैपिटल्स में फिक्स हैं. बस ये चेंज आएगा 61 इलस्ट्रेशन में, अदरवाइज क्वेश्चन इज सेम. ठीक है, उसमें आपको ये सारी वर्किंग नहीं करनी है. क्वेश्चन नंबर 61 में आपको सिर्फ कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दीज कैपिटल्स, यानी कि क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है उसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 62. ऑन 31st March 2014 the balances in the capital accounts of A, B and C after making adjustments for profits and drawings were rupees 1,60,000, 1,20,000, 80,000. Okay, these are the
also closing capital. Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawings had been omitted. This is the same point. The profits for the year ended 31st March 2014 was rupees 40,000. Profit is also given. During the year, A and B each withdrew a total sum of rupees 24,000 in equal installment in the beginning of each month, and C withdrew a total sum of 48,000 in equal installment at the end of each month. Yes. दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मैंने आपको कराया था मंथली. ठीक है, एक पर्सन तो बिगिनिंग में निकाल रहा है और सेकंड पर्सन जो है सी वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपका विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग्स. तो इसका कॉन्सेप्ट आपने वही मंथ्स आपने वैसे ही लेके चलने हैं जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए थे. ओके, ए बी दोनों पर्सन बिगिनिंग में कर रहे हैं और सी जो है वो एंडिंग में. ओके, तो अकॉर्डिंगली जो ए एंड बी हैं उनके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट विल बी फॉर 6.5 मंथ्स, एंड जो सी है बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे फॉर 5.5 मंथ्स. ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है लास्ट लेक्चर्स में. यू कैन सी the interest on drawings was to be charged at the rate 5% per annum and interest on capital was to be allowed at the rate 10% per annum. ये भी आप कर लोगे. And the profit sharing ratio among the partners was 2:1:1. Okay, so question is clear. Showing your working notes clearly, pass the necessary rectifying entry. कर सकते हो, you can do by yourself easily. बस आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको यहाँ पर कैलकुलेट जब करना है तो वो मंथ्स आप यहाँ पर देख लेना. बिगिनिंग में 6.5 मंथ्स है और एंडिंग में 5.5 मंथ्स. ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 63. The capital accounts of Alka and Archana showed credit balances of 4 lakh and 3 lakh respectively. Okay. After taking into account drawings and net profit of the rupees 2 lakh, again closing capital is given. इस क्वेश्चन में भी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. So the drawings of the partners during the year 2018-19 were Alka withdrew rupees 10,000 at the end of each quarter. Okay, तो if end of the each quarter है withdrew कर रही है तो यहाँ आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कंप्लीट टोटल अमाउंट, यानी कि 10,000 क्वार्टरली है तो एनुअली हो जाएगा ये 40,000. एंड सेकेंडली मंथ्स कितने आप चार्ज करोगे 4.5 मंथ्स. ओके, नेक्स्ट अर्चना's drawings were 31st May 2018 8,000, 1st November 2018 7,000 and 1st February 2019 5,000. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसका कोई फिक्स पीरियड टाइम नहीं है. तो नाउ यू कैन यूज प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अर्चना. ओके, अर्चना के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट मेथड इसमें यूज कर सकते हो. आप सिर्फ प्रोडक्ट मेथड इसमें सूटेबल है क्योंकि इसने सिर्फ ओनली 3 टाइम्स जो है वो इन बिटवीन इसने विड्रॉ किया है. तो प्रोडक्ट मेथड विल बी सूट. ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10% per annum and interest on partners drawings at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2019. So rate of interest is given in your question. Now you can do by yourself. Also this question is very similar to previous. Okay, next illustration number 64. मैं सारी illustration read करके चल रही हूँ ताकि अगर कुछ भी न्यू पॉइंट इसमें आते हैं तो वो हम डिस्कस कर सकें. ठीक है, and Puneet and Akshara were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Ratio is given. Following was the balance sheet of the firm as at 31st March 2019. आपके पास बैलेंस शीट गिवन है पुनीत और अक्षरा की 31st March 2019 में, in which capitals are given, capitals are shown and sundry assets are shown. Okay, the profits rupees 40,000 for the year ended 31st March 2019 were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate 5% per annum. प्रॉफिट जो है 40,000 का उनमें डिवाइड हो चुका है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया गया है यहाँ पर 5% per annum. एंड कमीशन टू अक्षरा also not given, not provided at the rate rupees 1,000 per quarter.
मीन्स एनुअली इसका 4000 हो जाएगा, तो ये भी नहीं दिया उनको, ठीक है अक्षरा को। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर पुनीत रुपीज 2500 पर मंथ एंड अक्षरा रुपीज 10,000 पर क्वार्टर। ड्रॉइंग्स भी गिवन है आपके पास, एंड शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, so in this question closing capitals are given, so first of all you have to calculate ओपनिंग कैपिटल, कर लोगे कैलकुलेट, एड ड्राइंग्स करनी है और प्रॉफिट्स को आपने डिडक्ट करना है, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी यहाँ से। देन यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लेना इसमें से। देन कमीशन जो है वो आपके पास गिवन है ऑलरेडी, वो भी आप इसमें ऐड कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने प्रोवाइड करवाना है और कमीशन भी प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके देन यू कैन डिवाइड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और देन यू कैन कंपेयर एंड यू कैन फाइंड नेट इफेक्ट। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी इसकी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, #65 illustration. Himanshu and Vikrant are partners in a firm and share profits equally. Okay, दो पार्टनर हैं, रेशियो इक्वल है। इलस्ट्रेशन नंबर 65 है। Their balance sheet as at March 31st 2017, बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, कैपिटल्स एंड क्रेडिटर्स गिवन इन लायबिलिटी साइड एंड फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स इन एसेट साइड। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 2016 and 17, Himanshu's drawings were 30,000 and Vikrant's drawings were 40,000. Annual drawings given है। During the year 2016-17, the firm earned profit rupees 1 lakh, profit given है। While distributing profits for the year 2016-17, interest on capital at the rate 5% per annum and interest on drawings at the rate 12% per annum were ignored. Same points, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बेटा। इसमें भी जो कैपिटल्स गिवन है ना बैलेंस शीट में 31 मार्च 2017 में, सो दीज कैपिटल्स आर क्लोजिंग कैपिटल्स। तो इसमें भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल, एंड ड्राइंग्स आर आल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन, तो यू विल ऐड ड्राइंग्स इन क्लोजिंग कैपिटल, एंड प्रॉफिट भी गिवन है, you will deduct profits from the closing capital, so you can calculate opening capital. Okay, after then you can calculate interest on capital and interest on drawings, वो आप कैलकुलेट करके इसके बाद ये अपना नेट, ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के साथ नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लोगे और एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। we can do any one exercise question, सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। from back exercise, yes students, open page number 2.128. Question number 67 from exercise पेज नंबर 2.128, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं 67। ओके, आई एम रीडिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट
दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मेथड. ये जो आपकी सिंगल जर्नल एंट्री है एडजस्टमेंट्स, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% per annum for the year ending 31st March 2021. Okay, and balance sheet given है as at 31st March 2021. ये closing balance sheet है, so that's why closing capitals also are given in the balance sheet. A is capital, B is capital, 1,80,000, and profit and loss appropriation account 40,000. Okay, and fixed assets 1,40,000, current assets 60,000, drawings B की given है only 20,000. Right now, adjustments. Profits during the year ended 31st March 2021 was rupees 70,000. A and B share profits in the ratio of 2:1. Drawings during the year ended 31st March 2015, sorry, 2021 were A rupees 16,000 and B 20,000. Okay, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये. मैम इसमें ड्राइंग्स एसेट साइड क्यों दे रखी है? ड्राइंग्स आपकी एसेट साइड में ही आती है स्टूडेंट्स. आप डिडक्ट करते हो ना कैपिटल्स में से. ओके मैम, ओके मैम. डेबिट होती है ना ड्राइंग्स, डेबिट बैलेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना, तो यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, कैपिटल्स गिवन है ए एंड बी की 67 क्वेश्चन. ए बी कैपिटल्स है 1,80,000. क्लोजिंग कैपिटल 1,80,000. The calculations of opening capital. First of all, we will calculate the opening capital. ठीक है, closing capital given है. Then share of profits जो already added है in capitals, तो we will deduct. Okay, minus करेंगे हम profit को जो कि इसमें already added है. Profit कितने का है आपके पास? Profit during the year ended 31st March is 70,000. और ऊपर देखो appropriation में profit and loss appropriation is 40,000. शेयर हमें वो कैलकुलेट यहाँ पर कैलकुलेट करके डिवाइड करना है. दैट इज जो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो कि ऑलरेडी एडेड है कैपिटल्स में, वो कितना है? 70,000 का प्रॉफिट है और 40,000 का एप्रोप्रिएशन है. 70,000 माइनस 40,000, ओनली 30,000 वी विल डिवाइड जो कि इसमें एडेड है. ठीक है, एप्रोप्रिएशन तो ऑलरेडी उनके पास ही है. 30,000 को हम डिवाइड करेंगे उनकी रेशियो में. रेशियो इज 2:1 in 2/3 and 1/3. Okay, 20,000 and 10,000. ओके, क्या आएगा अभी टोटल करके? सॉरी, माइनस कर देंगे इसको. 80,000, 70,000. आफ्टर देन ड्राइंग्स एक ही पर्सन की गिवन है ना, बी की ओनली. A and B share profits in the ratio 2:1. Drawings during the year 31st March 2000. A 16,000, B 20,000.
आपको सिर्फ वही ड्राइंग्स यहाँ शो करनी है जो कैपिटल्स में से डिडक्टेड हैं. यू कैन सी इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आप देखो कि ड्राइंग्स बी की जो शो हो रही हैं, इट मीन्स वो अभी भी ड्राइंग्स हैं, उसको आपने कैपिटल्स में से डिडक्ट नहीं किया, तभी वो अभी भी बैलेंस शीट में शो हो रही है. बट ए की ड्राइंग 16,000 थी जो अभी भी इसमें शो नहीं हो रही, इट मीन्स वो इसमें से डिडक्ट कर दी गई है. ओके, तो वी विल ऐड ओनली ड्राइंग्स ऑफ ए. तभी मैंने ये क्वेश्चन कराया. इसमें थोड़ा डिफरेंट है ये कि इसमें आपको ये चेक करना है, इफ ड्राइंग्स ऑफ ए इज गिवन इन द एडजस्टमेंट बट बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा है ना, तो इट मीन्स हमने अभी इसको डिडक्ट नहीं किया है. ओके, बी को डिडक्ट नहीं किया है, ए को डिडक्ट कर दिया है. तो हम लोग यहाँ पर कौन सी यहाँ पर लेंगे जो डिडक्टेड है कैपिटल में से, और वो है सिर्फ ए की. डिडक्टेड है वो 16,000. 20,000 को हमने इसमें नहीं लेना. अभी भी वो शो हो रही है बैलेंस शीट में, अभी इसको कैपिटल में से रिड्यूस नहीं किया. देखो आपने अलग से मेंशन किया हुआ है डेबिट साइड में, यानी कि एसेट साइड में. ओके, नाउ यू विल ऐड ओनली ड्राइंग्स ऑफ ए इन ए पार्टनर. तो ये आएगी 0006 प्लस 96,000. ठीक है, और इसका आ जाएगा 70,000. नाउ यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट आपके पास गिवन है @5% पर एनम. ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट 5% ऑन 96,000 फॉर ए and 5% on 70,000 for B. कर लो कैलकुलेट इसको. $4,800, 3,500. Okay. Now you can calculate and you can make your table, adjustment table. अब आप बना सकते हो आगे. बस ये जो क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल ये निकालनी थी, ओपनिंग कैपिटल, ये मैंने आपको एडजस्टमेंट यहाँ करा दिया. नाउ यू कैन डू बाय योरसेल्फ. स्टूडेंट्स, टुडे योर होमवर्क इज यू कैन सॉल्व questions up to 67 from the back exercise. 67th मैंने करा दिया आपको, but 66 तक आप you can do by yourself. Thank you students. Have a nice day.